Next example is 6.37. Example 6.37. What inductance would be needed to store energy of 1 kilowatt hour? Okay, so the energy is given 1 kilowatt hour in a coil carrying current of 200 ampere. Okay, so इतना एनर्जी स्टोर करने के लिए सेल्फ इंडक्टेंस कितना होना चाहिए, दैट इज द क्वेश्चन. Okay, so how to calculate this? We know that energy stored is given by formula half Li square. Okay, energy stored in inductor is given by formula half Li square. Energy stored is 1 kilowatt hour. 1 kilowatt hour means 1 kilo means 10 raised to 3. Okay, watt means joule per second. Okay, so in this way you can write 1 as it is. Kilo means 10 raised to 3. Watt means joule per second. Hour means 3600 second is equal to half. L is to be calculated. I square means 4 into 10 raised to 4. So यहाँ पे yes cancel, joule only रहेगा. So left hand side को 3.6 into 10 raised to 6 बचेगा. Right hand side को 2 into 10 raised to 4 L, and therefore L is equal to 3.6 into 10 raised to 6 divided by 2 into 10 raised to 4. Okay, so this is 1.8 into 10 raised to 2 Henry. So that is the answer. Very simple question. Next is 6.38. 6.38. Two coils having self-inductance 5 millihenry and 1 millihenry. The current in the coil is increasing at the same constant rate at a certain instant, and power supplied to coil is also same. Find the ratio of. There are two coils. First coil has a inductance of 5 millihenry and second coil has self-inductance of, okay, second coil has self-inductance of 1 millihenry. The current in the coil is increasing at the same rate. मतलब di by dt is same for the two coils at same constant rate at a certain instant, and power supplied to the coil is also same. Power to the two coils is also same. That is given in the question. Find the ratio of induced voltage. यहाँ पे first question है, what is the ratio of induced voltage? Ratio of induced voltage मतलब E का रेशियो लेना है हमें. ओके, सो E इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, L di by dt है. अभी di by dt दोनों कॉइल में सेम है, एंड देयरफॉर E1 by E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 by L2. ओके, सो L1 is 5 millihenry and L2 is 1 millihenry. So ratio of induced EMF will be 5 by 1. That is the answer. Next question in this case is ratio of current. Second is, what is the ratio of current? रेशियो ऑफ करंट निकालना है. अभी करंट का रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे पावर का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सो पावर इन द फर्स्ट कॉइल इज इक्वल टू पावर इन सेकंड कॉइल है. पावर इन फर्स्ट कॉइल मतलब E1 इंटू I1 and power in second coil is E2 into I2, and therefore I1 by I2 is coming to be E2 by E1.
and therefore I1 by I2 can be written as E2 by E1 means that is 1 by 5. So EMF का रेशियो 5:1, करंट का रेशियो 1:5 आ जाएगा. नेक्स्ट, एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉइल एट दैट इंस्टेंट. रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड अभी निकालना है. रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड. ओके, अभी एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या है? हाफ LI² है. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों कॉइल का यल भी डिफरेंट है, करंट भी डिफरेंट है. सो U1 by U2 इज इक्वल टू L1 by L2 इंटू I1 by I2 स्क्वेयर. So therefore U1 by U2 is equal to 5/1 into I1 by I2 1 by 5 का square, that is 1 by 25. So therefore ratio of energy stored will be 1 by 5. That is the ratio of energy stored. Next question is 6.39. Suppose a cube of volume 2 mm cube is placed in the center of circular loop of radius 5 centimeter. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है? There is a circular loop like this. इसका रेडियस कितना है? रेडियस इज 5 सेंटीमीटर. एंड इसके सेंटर को क्या किया है? यहाँ पे क्यूब रखा है लाइक दिस. क्यूब, इसका वॉल्यूम है 2 mm क्यूब एंड करंट ऑफ 2 एम्पियर flows through this loop. Find the energy stored in the cube. क्यूब में स्टोर्ड एनर्जी निकालना है. एनर्जी स्टोर्ड इन द क्यूब. ओके, तो यहाँ पे क्या क्या दिया है? करंट इज 2 एम्पियर, उसके बाद रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम दिया है 2 mm क्यूब. ओके, अभी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है. एनर्जी डेंसिटी, ओके, सो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाफ B² by mu naught. ओके, एनर्जी डेंसिटी का. Therefore एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ B² by mu naught इंटू वॉल्यूम. ओके, क्योंकि एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है. सो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ B² by mu naught इंटू वॉल्यूम हो जाएगा. ओके, सो U इज इक्वल टू हाफ B². उसके लिए पहले B निकालना पड़ेगा और B का डायरेक्टली इधर फॉर्मूला लिखता हूं. यहाँ पे इस क्यूब में कितना एनर्जी स्टोर होने वाला है निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हमें. मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या रहता है? म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रेडियस. मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप क्या फॉर्मूला रहता है? म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाय 2r, इसका स्क्वायर. ओके, 1 by म्यू नॉट सेपरेट इधर लिखता हूं, दैट इज म्यू नॉट एज इट इज इंटू वॉल्यूम. So therefore energy stored is half, ये म्यू नॉट स्क्वायर हो जाएगा. म्यू नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मतलब एक म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा. म्यू नॉट I² डिवाइडेड बाय 4 कैपिटल R² इंटू वॉल्यूम. इसमें वैल्यूज प्लेस करेंगे. म्यू नॉट का वैल्यू रहता है 4 pi इंटू 10⁻⁻⁷. करंट इज ऑफ 2 एम्पियर. ओके, करंट इज ऑफ 2 एम्पियर. 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाय 4 रेडियस स्क्वायर. रेडियस स्क्वायर मतलब 25 इंटू 10⁻⁻⁴ हो जाएगा.
क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, सेंटीमीटर मतलब 10⁻², स्क्वायर ऑफ 10⁻² इज 10⁻⁴, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 2 mm³ ना, सो 2 इंटू mm³ का कितना हो जाएगा 10⁻⁹, बिकॉज मिलीमीटर, मिली मीन्स 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर का क्यूब, तो 10⁻³ का क्यूब 10⁻⁹ हो जाएगा. So energy stored is equal to this 4 and 4 get cancel. Okay. After that, this 2 and 2 get cancel. तो यहाँ पे क्या 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 बचेगा, न्यूमरेटर को 4, ओके, नंबर कौन सा 4 पाई बचेगा, और डिनोमिनेटर को 25. एंड पावर का कैलकुलेशन, पावर का 10⁻⁷, 10⁻⁹, 10⁻⁻16, एंड 10⁻⁻16 बाय 10⁻⁴, मतलब 10⁻12. ओके, 10⁻12. अभी 4 को 25 से डिवाइड करता हूं तो 0.016 पाई इंटू 10⁻12, या फिर इसी को 1.6 पाई इंटू 10⁻14 लिख सकते हैं. So this much amount of energy stored in the form of magnetic field in that cubical volume. Okay, next is combination of self inductance. Okay, series and parallel combination of self inductance. Okay, combinations of inductors, combinations of inductors. ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखा है, कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन देखा है, वैसे इंडक्टर का भी कॉम्बिनेशन रह सकता है. सो फर्स्ट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन. ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. Series combination will be like this. Okay, so these are the series. This is called as series combination. तो यहाँ पे L1 है, यहाँ पे L2 है, तो यहाँ पे इक्विवेलेंट कितना आता है, इसका फॉर्मूला सिमिलर टू ये रेजिस्टेंस ही है. सो इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू Ln. Okay, similarly second is the parallel combination. Parallel combination. Parallel combination मतलब when number of inductors are connected between two common points, that is called as parallel combination. अगर इसका L1 है, इसका L2 है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 by LP is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 up to 1 by Ln. Okay, so in this way there is a series and parallel combination and equivalent inductance. Okay, so these formula are similar to the resistors. Okay, series combination of resistor का equivalent क्या रहता है, RS is equal to R1 plus R2 plus R3 up to Rn. Similarly LS is equal to L1 plus L2 plus L3 up to Ln. Parallel का क्या रहेगा, 1 by LP is equal to 1 by L1 plus 1 by L2 plus 1 by L3 up to 1 by Ln. Okay, checkpoint 6.3 question 1. Okay, so checkpoint 6.3 question 1. SI unit of inductance, the Henry can be written as.
ओके, हेनरी को और किस तरह से लिख सकते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट ई डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी रहता है। ओके, सो इस तरह से दूसरा यूनिट भी आ सकता है। ईएमएफ का क्या रहेगा? वोल्ट, डी आई बाई डी टी का एम्पियर पर सेकंड, सो सेकंड ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा? वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ओके, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। So this is the answer of the first question. A long solenoid has 500 turns. 500 turns. When current of 2 ampere is passed through it, current of 2 ampere passes through it, then the resulting magnetic flux linked with each turn of solenoid. Okay, flux per turn दिया है इधर is 4 into 10 raised to minus 3 Weber. The self-induced EMF, self-inductance of the solenoid is, then self-inductance of solenoid. अभी सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं हम? L इज इक्वल टू 5/I करते हैं ना, 5/I। तो टोटल पहले फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फ्लक्स पर टर्न कितना है? 4 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3। कितने टर्न्स है? 500 टर्न्स है। डिवाइडेड बाय करंट कितना है? 2। So self-inductance of solenoid will be 4 into 500, it is 2000 into 10 raised to minus 3 divided by 2. So it is coming to be 1 Henry. That is the answer. Next question. Question number 3. If a current of 10 ampere changes in 1 second through coil, current of 10 ampere changes in 1 second through a coil, and if induced EMF is 10 volt, then self inductance of the coil is, okay, so self inductance is nothing but E divided by di by dt. अभी यहाँ पे इस क्वेश्चन में EMF इंड्यूस्ड कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया है, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मतलब di by dt दिया है। करंट कितना चेंज होता है? 10 एम्पियर से चेंज होता है, एंड कितने सेकंड में? 1 सेकंड में चेंज होता है। Okay, in the question it is given that current of 10 ampere changes, मतलब di 10 in second, in 1 second, so dt is 1, so L is equal to 10 divided by 10, so answer आएगा 1 Henry. Next question, question number 4. During current changes from 2 ampere to 4 ampere in 0.5 second, मतलब di by dt दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में di by dt ड्यूरिंग ए करंट चेंज फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर, मतलब 2 to 4 मतलब 2 एम्पियर का चेंज इन करंट है, इन 0.5 सेकंड है। ओके, एंड EMF इंड्यूस्ड इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 8 वोल्ट। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस मतलब L निकालना है। सो दिस इज कमिंग टू बी 4, 2 divided by 0.5 means 4, and L is equal to E divided by di by dt. So E is 8 divided by 4. So self inductance is coming to be 2 Henry. Next, question number 5. Current passing through a choke coil of 5 Henry is decreasing at the rate. Inductance दिया है 5 Henry and current is decreasing at the rate, मतलब di by dt दिया है। di by dt is 2 ampere per second. The EMF developing across the coil is, कितना EMF डेवलप होगा? अभी यहाँ पे प्लस माइनस सभी साइन दिया है, सो डिक्रीजिंग मतलब माइनस यहाँ पे लेना पड़ेगा। करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट मतलब माइनस, EMF इज इक्वल टू माइनस L di by dt. So E is equal to minus L is 5, di by dt is minus 2. So EMF induced will be plus 10
volt will be the answer. Okay. After that, question number 6. The coil of self-inductance 0.5 Henry. Coil of self-inductance 0.5 Henry. Current varies at the constant rate from 0 to 10 ampere in 2 seconds. Current is increasing at constant rate बोला है. From 0 to 10 ampere मतलब change in current is 10 ampere and कितने टाइम में होता है ये? 2 सेकंड में होता है. तो di/dt आ जाएगा 5 ampere per second. The EMF generated in the coil, EMF निकालना है, E is equal to minus CL di/dt. So induced EMF is minus 0.5, di/dt is 5. So induced EMF will be minus 2.5 volt. Okay. So यहाँ पे आंसर में ओनली मैग्नीट्यूड दिया है, तो मैग्नीट्यूड आता है 2.5 वोल्ट मैग्नीट्यूड. क्वेश्चन नंबर 7. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय. अभी सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. सो दिस इज द फॉर्मूला ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल. दिस इज द फॉर्मूला फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड. अभी इसको इंक्रीज नहीं कर सकते हैं. किस तरह से इंक्रीज नहीं कर सकते? फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज किया तो सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज हो गया. इंक्रीजिंग लेंथ, अभी लेंथ इंक्रीज करने पर सेल्फ इंडक्टेंस कम हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर विल बी बी, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लेंथ. लेंथ इंक्रीज करने पर सेल्फ इंडक्टेंस इंक्रीज नहीं होगा. Self inductance of a long solenoid cannot be increased by. Okay. यहाँ पे करंट भी आता है, इंक्रीजिंग करंट थ्रू इट, क्योंकि करंट और सेल्फ इंडक्टेंस का कुछ संबंध नहीं रहता. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैन नॉट बी increased by. देखो जरा इसका आंसर क्या आ जाएगा. क्वेश्चन इज दैट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय. फर्स्ट ऑप्शन इज इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. Second option is increasing its length. Third is changing the medium with greater permeability. And last is increasing the current through it. Okay. So most correct option कौन सा आ जाएगा? करंट और सेल्फ इंडक्टेंस का कुछ संबंध है. एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है. सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय, मतलब इसका ऐसे ले सकते हैं, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय मतलब कैन बी डिक्रीज्ड बाय. कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बाय मतलब कैन बी डिक्रीज्ड बाय, ऐसा बोल सकते हैं. सो सेल्फ इंडक्टेंस कैन बी डिक्रीज्ड बाय. हाँ, सेल्फ इंडक्टेंस डिक्रीज करने के लिए लेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा. दैट इज करेक्ट. सो करेक्ट, ये सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट.